this is Nitika with you on your weekly show Stock Talk. As we were discussing with our guest Mr. Hardik Kotecha regarding his experience in stock market in our last episode, today it's a follow-on episode where we would be discussing on topic like types of investment, how to trade, especially on how to select broker, account opening process, how to build portfolio in detail, and some briefs on funda tech analysis. Hello Mr. Hardik Kotecha. As we discussed about audience making mistakes which result in losses, today we would request you to share information on safe trading and investment. We would start with type of investors and investments. Please enlighten our audience about it. When you talk about investment, what type of investment you are making, what type of audience they are looking at to invest, that's the most important point. Stock market have got different type of modes of investment like long-term investment, short-term investment, a positional trader or a short-term trader or an intraday trader. First of all, the concept among investment should be clear that what an investor want to invest and how they want to invest. If they are looking at for an investment wherein with a specific goals, say for an example, someone is looking at that I have got a kid who is a newly born baby and I just want to invest for a period of 5 years, 10 years, 20 years, and at the time of when he or she is getting married or he or she is planning for some further education, at that time I want my money back. I would be investing on lump sum amount every month or every period. And such investors are called the long-term investors. When this type of investment appears or comes in the market, if you look at such investors, say when I started, Nifty was something around 2000, 3000 and now it's around 15, 16,000. So the gap between both of them is a gain which they have made. That's a sort of a long-term investors. Other than this, we have got the short-term investors. Short-term investors are those who are making a periodical investment. Say for example from 15 days, 20 days, 1 month, 2 months, 3 months for a maximum period of 6 months. Such investors are called short-term investors. They are specifically a sort of money, sort of cash flow which they put into the market. They are the amount which appears for a period, specific period. जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कि हम लोगों ने कोई सस्ते प्राइस पे ले लिया, एक ट्रेडर हो गया, एक राइस ट्रेडर हो गया या फिर एक गोल्ड ट्रेडर हो गया. वो बंदा at a time when he is investing, when he is putting his money for a period of 15-20 days, 1 month, is a short-term investment. Other than that, periodical investors में और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर. They are purely and purely traders. उसमें इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं होता है, उनको या तो प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए. आज पैसा डाल दिया, जैसे L&T की आप बात कर लो, 1450 का रेट आ गया, they put their money and they wait till it goes to the resistance level 1570 1580 के लेवल तक they will wait. And when this period comes wherein a market price of a stock is taking a support at 1450, which is a support, and the resistance is at 1560, that is called the entry and exit are depending on support and resistance. That is called a positional trader. 1450 में लिया तो 1425 का स्टॉप लॉस डालेगा, 1560-70 में आएगा, फिर वो ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है. You will exit the position. They are the positional traders. Other than that, we have got a intraday trader. Intraday traders क्या होते हैं बेसिकली? सुबह 9, 9:30, 10, 11, 12 बजे माल दिया, दोपहर को 3 बजे तक they exit the market. They are the purely and purely intraday traders. जिसमें टाइप ऑफ एंट्री दिन के मार्केट का जो मोमेंटम होता है उनसे उनकी एंट्री फिक्स होती है. मार्केट सुबह ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई with 200, 300 points, 100 points gap up opening हुई, मार्केट सस्टेन हुआ, then they'll make their position at that time. And if they're looking at कि आज मार्केट और बढ़ेगा तो at that time they'll invest. उसके बाद 3 बजे तक जब भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, whether it's 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, they'll exit the position. They are the intraday traders basically. और उनके हिसाब से उनके ब्रोकर सिलेक्शन होते हैं. कोई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स में जाते हैं, कोई लोग अलग किस्म के ब्रोकर्स में जाते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में जाते हैं. उनके हिसाब से उनके ब्रोकरेज के पैकेजेस होते हैं. वही सब चीज़ों को लेकर पूरा एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं.
Acha, brokers have types. Our viewers would like to know in detail about types of brokers and how they operate. Brokers are already types ना. If you talk about brokers तो traditional broker होते हैं जो हमारे राजा राउत से मेरे डैड के टाइम पे जो लोग बिजनेस करते थे brokers, उनकी जो सिस्टम क्या थी कि when the crowd is coming, उनके साथ बात करो, बात करके उनकी पॉलिसीज के हिसाब से they share their brokerages. We start from 1 पैसा इंट्राडे से लेकर 20 पैसा 50 पैसा तक पर डिलीवरी के चार्जेस they used to charge. They are the pure brokers which provide the portfolio management services along with PMS services. They also provide with different types of tips they give to the audience or the clients. Other than that, we also have got the brokers who are known as discount brokers. Discount brokers का concept कहाँ से आया? जब से online trading market में accept होना शुरू हो गई है. आज की generation जो आई है market में, वो are more into trading. उनका concept क्या है कि हमको we want to make money. There is a wide range of audience. There is a wide range of information which our audience get. Basically, clients को जो audience जो होती है, जो information चाहते हैं उनको मिलती है from the NSE side, from the BSE side. उनको study कर रहे हैं, टेक्नोफंडा research करते हैं. Other than that, tech से भी इतनी crowd आज के डेट में हो चुका है कि उनको एक ब्रोकर की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, but they just look at कि उनको सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स कहाँ पे मिल रहा है. तो उन लोगों के लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए जिनका कॉन्सेप्ट क्या है, दे प्रोवाइड विद एक्सट्रीमली टू गुड टेक्नोलॉजी सपोर्ट. उनकी मोबाइल में ऐप आते हैं फ्रॉम विच यू कैन पुट योर डील्स, बाय सेल के आप डील्स वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो. यू कैन मेक योर ओन वॉच लिस्ट. आपको सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड ऑन NSE और BSE इज इन योर फिंगरटिप्स. वो डिस्काउंट ब्रोकर्स आते हैं, नो डाउट. उसके साथ साथ ट्रेडिशनल ब्रोकर्स they also started being upgrading themselves. अपग्रेड उनको क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनका भी बिजनेस जा रहा है. आज एक सिंपल सा फंडा है कि जो लोग टेक सेवी है, they are transferring themselves from traditional broker to discount brokers. क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर क्या लेते हैं ट्रेड के 20 रुपए, जबकि अगर वही चीज ट्रेडिशनल ब्रोकर में जाओ तो आपको 500, 600, 1000, 2000 रुपए पर ट्रेड के हो जाता है. तो प्रॉफिट गैप अप जो होता है ट्रेडर के लिए, वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है. जिसकी वजह से डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है ना, वो आज की डेट में ज़्यादा चल रहे हैं कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल ब्रोकर्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं विच आर ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेड्स. उसमें कोई अदर सर्विसेज नहीं होती, बट उनका फंडा होता है सबसे अच्छी सर्विस आपको दो. मंथली पैकेजेस आपको देते हैं, 500 रुपये में, 1000 रुपये में आपको जितने ट्रेड करने हैं कर लो. कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लिमिट्स देते हैं, लिवरेज ज़्यादा देते हैं. कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो इंट्राडे में अच्छी खासी लिमिट देते हैं. तो उस हिसाब से ब्रोकर्स आर डाइवर्सिफाइड एज वेल एज फॉर्मेशंस उनके अलग हो जाते हैं. Okay, then from all these such variants as you shared, how to select the right broker? राइट ब्रोकर का सिलेक्शन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इन स्टॉक मार्केट यू आर लुकिंग एट. जैसे ऑडियंस अगर आपकी देखे कि भाई हमको ये बिजनेस करना है, मेरा फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इज माय गोल. आई एम लुकिंग अहेड फॉर अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एम आई अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एम आई अ इंट्राडे ट्रेडर, एम आई अ पोजिशनल ट्रेडर और अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर. द फर्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू डिसाइड बिफोर गोइंग और selecting a broker or opening an account, the first thing is I need to search or I need to decide what type of trader or investor I am. If I'm a long term investor, जिसमें आज लेकर मुझे 5 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, जब तक मेरा गोल अचीव नहीं होता है या गोल का टाइम नहीं आता है, तब तक मुझे कुछ बेचना नहीं है या फिर मुझे कुछ काम नहीं करना है. मुझे सिर्फ मार्केट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ऐड ही करते जाना है. So for me, the discount broker is the right person whom I should contact. But if I am a daily trader, intraday trader, or a positional trader, then I should go to a traditional broker wherein I get good leverage from the broker. जैसे आज के डेट में बहुत सारे बैंक्स हो गए हैं, वो आर इंट्रोड्यूसिंग मनी, जो खुद का पैसा डालते हैं, वो फंड्स द स्टॉक मार्केट. HDFC बैंक की बात कर लो, ICICI बैंक की आप बात कर लो, ये बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट शेयर्स प्रोवाइड करते हैं. ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं कि भाई दे लेवरेज वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, दे प्रोवाइड विद अ फैसिलिटी वेयर इन दे बीइंग अ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फंड्स द एंटायर थिंग.
जैसे आपने रिलायंस आपको लेना है तो लेना है, रिलायंस इज कॉस्टिंग 2000 रुपीज, आप 100 शेयर लोगे 2 लाख रुपये, आपको बोलेंगे सर आप 70,000 दो, 1,30,000 अमाउंट, 1,30,000 की जो अमाउंट आती है विच इज बीइंग फंडेड बाय द बैंक्स। तो ऐसी जो अमाउंट आती है ना, वो किन लोगों के लिए अच्छी अमाउंट है कि जिनको पास पैसे कम है, 35, 40, 50% का इन्वेस्टमेंट उनको करना है एंड दे वांट टू ट्रेड इट फॉर अ शॉर्ट टर्म, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए उनको ट्रेड लेना है, तो उनके लिए ये सब ब्रोकर अच्छा है। सो द मेन फंडा वही है कि आप किस तरह के आप काम करना चाहते हो मार्केट में। यू वांट टू इन्वेस्ट, देन गो विद अ डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आज के डेट में M2F मार्केट टू फंड की फैसिलिटीज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी अच्छे। तो सबसे पहले अपने गोल को, अपने टाइप को आप पहचानो, एंड देन यू सिलेक्ट द ब्रोकर इन विच यू कैन ट्रेड। कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से सिलेक्ट अ ब्रोकर एंड गो विद दैट ब्रोकर फॉर योर ट्रेड्स बेसिकली। Right. So, what are the documents required for opening and trading Demat account? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। सबसे पहले तो आधार कार्ड सबको बोल दिया, आधार कार्ड है आपके पास, पैन कार्ड है, यू कैन ओपन योर अकाउंट। Nothing more than Aadhaar card or a PAN card is required to open an account. पहले के जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे, उनकी प्रोसेस थी कि सर आप फोटोज दो, फॉर्म फिलअप करो। आज के डेट में ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, द एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज डिजिटलाइज्ड। फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यू नीड अ गुड बैंक विथ विच यू आर हैविंग एन अकाउंट। आप प्राइवेट बैंक में बात करते हो, यू कैन हैव अकाउंट विद स्टेट बैंक। State Bank is an excellent bank, nationalized bank, sorry, not a private bank. फिर प्राइवेट बैंक की बात करें, HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि उनका स्टेट बैंक के साथ एसोसिएशन के बाद इट्स अ सॉर्ट ऑफ गंगा स्नान ही उनका हो चुका है प्रैक्टिकली। तो एनी बैंक हु इज हैविंग अ गुड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फंड, आप कोऑपरेटिव बैंक में कभी अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, बट कोई भी बैंक जिसमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज अच्छी है, यू कैन गो एंड ओपन एन अकाउंट विद दैट बैंक, एंड देन विद एन अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड और अ प्राइवेट बैंक विद गुड इंटरनेट फैसिलिटीज, सर्विसेज लाइक मोबाइल ऐप एंड ऑल दैट, you can have an account with a good broker who is providing online services. उनके साथ आप अकाउंट ओपन करो, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो digitally sign करके you can open an account with a good broker and start trading immediately. Within 24 to 48 hours, your account will be active and you can start dealing with this. Okay, so after opening a trading Demat account, what are the points and precautions our audience should keep in mind and take while building a long-term profit wealth making portfolio? Long-term profit making, wealth making पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो वही चीज, सबसे पहले तो गोल क्या चाहते हैं। मार्केट में अगर आप आए हो ना, वेदर इट्स इन फॉर्म स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कुछ भी आप ले रहे हो, अ सिंगल पेनी ऑफ योर्स यू आर पुटिंग, सबसे पहले यू शुड ऑलवेज डिसाइड अ गोल। मुझे वो पैसा मैं डाल रहा हूँ, मुझे कब चाहिए। आइदर डिसाइड द गोल और यू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मुझे ट्रेड ही करना है, मैं 2 करोड़ की कैपिटल लेके आया हो, 5 लाख की कैपिटल लेके आया हो, वो उसको बढ़ानी है। वो जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक पोर्टफोलियो की टाइप आप डिसाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट वो चीज डिसाइड हो गई, देन आफ्टर डिसाइडिंग द गोल एंड द टाइप ऑफ अकाउंट इन विच यू आर मूविंग एट, एंड यू कैन गो अप विद पोर्टफोलियो क्रिएशन का टाइम आता है। आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट की एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट चलती कैसे है। व्हेन मार्केट स्टार्ट्स, मार्केट यहाँ पे होती है, प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, वापस यहाँ से कम होगा, वो यहाँ पे मोमेंटम ये होगी, फिर यहाँ से रुक के वापस ऊपर जाएगा, वो इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड हायर टॉप हायर बॉटम। उसी हिसाब से उल्टा चलता है। अगर यहाँ पे यहाँ से चलना शुरू होगा, नीचे जाएगा, यहाँ से वापस रुक जाएगा, यहाँ से वापस चढ़ेगा बढ़ेगा, ये क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस नीचे जाना शुरू करेगा, ऐसे फॉर्मेशन। आप माउंटेन की अगर बात करें ना, तो माउंटेन ऐसे चलते हैं ऊपर आते हैं, उसी तरह से ये अपर ट्रेंड हुआ, उसी तरह से लोअर ट्रेंड में है। आप ये जो चीज होती है ना, सबसे पहले ये चीज मार्केट की द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किस
तरीके से मार्केट चलती है, वेदर इट्स इन हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये जो चीज अगर आप जब जानना शुरू कर दो उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। हम लोग तो यही प्रेफर करते हैं कि निफ्टी 50 की जो स्क्रिप्ट्स है उससे बाहर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। निफ्टी 50 की जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। आप उसमें आईटी आ गया, उसमें बैंक्स आ गए, उसमें इंजीनियरिंग आ गया, एवरीथिंग एफएमसीजी आ गया, एयरलाइंस आ गई, जो भी चीजें हु इज इन गुड मोमेंटम वो सब निफ्टी 50 या निफ्टी 100 विच इज अ पार्ट ऑफ अ निफ्टी इंडेक्स। उसके फॉर्मेशन की उतनी स्क्रिप्ट्स को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल दो। निफ्टी 50 में 50 स्क्रिप्ट है, 50 स्क्रिप्ट को आप अपने डाल दो। उसके बाद हर एक सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, देन एयरलाइंस हो गई, या फिर आप एविएशन, एयरलाइन मतलब एविएशन हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हो गया, बैंकिंग हो गए। उन स्क्रिप्ट में से सबसे बढ़िया, और आज की डेट में आप घर से बाहर निकलते हो तो कौन सी प्रोडक्ट को आप देखते हो सबसे पहले? घर से बाहर निकले, ICICI बैंक दिखी, एड दैट बैंक टू योर वॉच लिस्ट। HDFC बैंक निकली, एड दैट बैंक टू योर वॉच लिस्ट। आप सुबह उठ के कोलगेट यूज करते हो तो कोलगेट इज एफएमसीजी प्रोडक्ट, उसको ऐड करो। च्यवनप्राश खाते हो, डाबर हो गया, उसको ऐड करो अपने वॉच लिस्ट में। यही स्क्रिप्ट को अलग फॉर्मेशन के हिसाब से उसकी मोमेंटम आप देखो कि कौन सी चीज किस टाइम पे चल रही है। जब एफएमसीजी चलेगा तब और कोई प्रोडक्ट नहीं चलेगी, आईटी चलेगा तो और कोई प्रोडक्ट नहीं चलेगी, आईटी चलेगा तो एफएमसीजी बैंक चलेगा, एफएमसीजी चलेगा तो नहीं चलेगा तो आईटी चलेगा, आईटी एफएमसीजी नहीं चलेगा तो बैंक्स चलेंगे, बैंक्स नहीं चलेंगे तो इंजीनियरिंग कंपनियां चलेगी। कोई ना कोई सेक्टर पूरी मार्केट में चलता रहता है। हम लोग सबसे अच्छी चीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए या पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो पहली चीज सिलेक्ट करते हैं ना, आपको हर एक सेक्टर में से 2-3 कंपनियां आपके पास होनी चाहिए विच शुड बी टॉप कंपनीज। वो जब लोअर में होते हैं टेक अ एंट्री, सपोर्ट के पास होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, एट दैट टाइम टेक अ एंट्री एंड एड इट टू योर पोर्टफोलियो। वेट करो, सेक्टर चेंज होता है, दूसरा सेक्टर जब वो कम होता है, सपोर्ट या कंसोलिडेशन के स्टेज पे आता है, मेक अ पोर्टफोलियो एट दैट टाइम, एड दैट स्क्रिप्ट टू योर पोर्टफोलियो एट दैट टाइम। उसी तरह से हर एक सेक्टर में से 2-3 कंपनियां आपके स्क्रिप्ट में होनी चाहिए। हाँ, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आप 50 की 50 कंपनियों को डाल दूं। अगर आप मैनेज कर सकते हो डेली अप्स एंड डाउन्स ऑफ ऑल द 50 कंपनीज, देन एड इट। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो जितनी कंपनी आप मैनेज कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में डेली उनकी प्राइस की अपग्रेडेशन देखने के लिए उतनी ही ऐड करो। 10 कंपनी ऐड कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, बट डोंट एक्सटेंड मोर देन 20। हम लोग तो 20 से ज्यादा पर दिन की नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो यू कैन एड इट टू योर वॉच लिस्ट, बट मैक्सिमम 20 को अपग्रेड करो एट अ टाइम। हम लोग ये नहीं कहते कि वी ओनली ट्रैक 20 कंपनीज एट अ टाइम, बट वी हैव गॉट अ बिग टीम जो हर एक बंदा 15-20 कंपनियों को करते एट अ टाइम। वी आर ट्रैकिंग मोर देन 300 to 400 कंपनीज, जिससे हम लोग कॉल जनरेट करते हैं एंड वी एड इट टू अ पोर्टफोलियो। उस कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च करो, नेट पे जाके, आप गूगल पे जाके, या फिर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके, NSE BSE के साइट्स पे जाके आप वो कंपनियों के फाइनेंशियल्स को देखो, कंपनी की कैपिटल क्या है, उनके ऊपर डेब्ट कितनी है, डेब्ट के बाद वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जैसा आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, वैसा उनकी बैलेंस शीट है वो कंपनी की, वो भी ऊपर जा रही है, वो नीचे आ रही है। हाँ, उस पर अगर नीचे आ रही है ना तो वो कंपनी में मत डालो पैसा, वो सीधी ऐसा ही जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं जानी चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट शुड गो डायरेक्टली अप। नीचे आ रही है तो वो कंपनी क्यों नीचे आ रही है? रिलायंस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस बिकम अ डेब्ट फ्री लॉकडाउन, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, मुकेश भाई साहब 1.5-2 लाख करोड़ लेके आ गए। कहाँ से मिल उनको पैसे? They were the investors in whom they were communicating। अगर लॉकडाउन में उनको 2-2.5 लाख करोड़ का अगर वो डेब्ट ना क्लियर नहीं करते तो क्या होती रिलायंस की पोजीशन? इट्स अ फैक्ट। हम लोग कुछ भी बात करें तो रिलायंस उसी हिसाब से चलेगा। वो डेब्ट फ्री की स्टेटस पे आज ऑलमोस्ट आ चुका है, तो जिसकी वजह से शेयर्स आर बूमिंग। वही चीज को फंडामेंटल और उसी चीज को आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखो। टेक्निकल चार्ट पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। When I'm talking about a daily chart, at that time you are not an intraday trader। अगर आप intraday trader हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के चार्ट को ही देखो। बट आप
पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली चार्ट्स को देखो, डेली चार्ट्स में किस हिसाब से द थिंग्स आर गोइंग, वेदर द मार्केट प्राइस इज गोइंग अप अप अप, तो उस हिसाब से उसमें आप डालो। जब तक रिवर्सल नहीं आता है, तो रिवर्सल आ जाता है इट विल गो डाउन, वापस रिवर्सल आती है इट विल गो अप। तो इसी फॉर्मेशन में अपने ट्रेड लो, अपने प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो में ऐड करो, और हर एक सेक्टर से दो तीन स्क्रिप्ट को, विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट जिसमें वॉल्यूम आता है। हाँ, फंडामेंटल में ये भी आप चीज सोचो कि आईटीसी जैसी स्क्रिप्ट आपके फंडामेंट में ना आ जाए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है बट टेक्निकली बहुत वीक कंपनी है। आईटीसी आप पोर्टफोलियो में रखने तो रखो, दैट्स अ वेरी गुड कंपनी। मेरे पोर्टफोलियो में आईटीसी पड़ा हुआ है, आई लव आईटीसी, बट आईटीसी अपने क्लाइंट्स को मैं रिकमेंड बहुत ही कम टाइम पे करता हूँ। क्यों कम टाइम पे करता हूँ? क्योंकि वो थका देता है आपको। बजट में कुछ आ गया, सिगरेट्स के लिए कुछ उल्टा सीधा आ गया, उनकी ड्यूटीज में ज़्यादा आ गया तो गिर जाएगा। नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड फॉर्मेशन के लिए आप कोई नेशनलाइज कंपनी ढूंढो, सरकारी कंपनी ढूंढो, उससे अच्छा यू इन्वेस्ट इन आईटीसी। कंपनी इज वेरी गुड। रादर हम लोग आईटीसी के लिए 300-400 के टारगेट्स हम लोग लेके बैठे हैं। हाँ, कब आएंगे वो पता नहीं, बट आएंगे वो पक्का, बिकॉज कंपनी उस हिसाब से ग्रो कर रही है। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ गुड पोर्टफोलियो। ज़्यादा रिसर्च है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। True. Anytime you can give us a call, you can always contact us. We are ready to handle each and everybody's portfolio. We don't mind it. True. So, sir, at last but not the least, to end this episode, share some knowledge on funda tech analysis. फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको अभी वही चीज बोला कि आप फंडामेंटल में कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो, बैलेंस शीट स्टडी करके उनके टेक्निकल चार्ट्स में उनकी पोजीशन क्या है। हम लोग जो रिसर्च करते हैं, what research we provide, they are the most important things which are to be kept in mind. Whenever you study the fundamental of the company, the most important thing what they are doing, what is their future, who is the management. विजय माल्या जैसे मैनेजमेंट है तो पैसा डूबने वाला है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कुछ नहीं कर सकते। नीरव मोदी साहब है तभी बोल रहे कि वापस इंडिया लेके आएंगे, पता नहीं कब लेके आएंगे। There is a total different story, but if such type of management is there who are not at all interested इन दी शेयरहोल्डर्स मनी, तो ऐसे मैनेजमेंट से दूर रहना चाहिए। वो सेक्टर का क्या आगे का फॉर्मेशन, व्हाट आर देयर प्लान्स फॉर फ्यूचर, इफ यू आर लुकिंग अहेड कि भाई आप किस हिसाब से देख रहे हो। अगर जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री इज बुलिश ऑन टेलीकॉम, बट वी आर सेइंग यू शुड बी कॉशियस ऑन टेलीकॉम। व्हाई? टेलीकॉम इंडस्ट्री की आप बात करें, सब बोलते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बुलिशनेस है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, बुलिशनेस नहीं है, आप कॉशियस हो जाओ। इंडियन पॉलिसी क्या है अबाउट टेलीकम्युनिकेशन? गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री? आज की डेट में सबसे महंगी कॉस्ट किसी भी बिजनेस में सबसे महंगी कॉस्ट आती है ना, आप इफ यू टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम या फिर ऑपरेशन कॉस्ट, तो वो टेलीकॉम की है। उसके सामने पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल अपने इंडिया में मिलता है। जो चीज सबसे सस्ती मिलती है पर एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगी तो कब तक सस्टेन होगी? हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट MTNL, BSNL, वोडाफोन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कंपनीज की बात करते रहते हैं। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट एयरटेल या रिलायंस में रीच इन दैट पोर्शन? रिलायंस कम्युनिकेशन एक बार हो चुका है, CDMA टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, दे वर नॉट एबल टू अपग्रेड इट आउट। उनके ऊपर 2G 3G का जो भी उनके ऊपर जो उनकी पास की टेक्नोलॉजी थी, उनके पैसों के बर्डन्स आने शुरू हो गए, तो दे वर नॉट एबल टू सस्टेन। वही चीज इन लोगों के ऊपर है। स्पेक्ट्रम के तो एक्सपेंसेस है ही है उनके, अदर देन स्पेक्ट्रम दे नीड टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। आप चाहते हो, मैं यूज करता हूँ, आप यूज करते हो, अपने हर एक चीज में मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस के बिना वी आर नोवेयर। वी नीड स्पीड। आज के डेट में वी आर टॉकिंग अबाउट 5G, वी आर टॉकिंग अबाउट 6G, 7G, 8G, 9G, 10G एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बट वही चीज आने के लिए जो पुराने एक्सपेंसेस किए उनका क्या? उनके अपग्रेडेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, इफ दे वर एबल टू सस्टेन दैट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करके अगर वो कुछ करती है एंड दे वर एबल टू सस्टेन द प्राइसेस ऑफ एक्सपेंसेस दे आर ट्रेडिंग, और उसी के सामने ऑपरेटर्स, रिलायंस जियो है या फिर एयरटेल है, वो प्राइसेस बढ़ाते हैं और पब्लिक में एक्सेप्टेंस आ जाता है, देन टेलीकॉम इज वेरी मच बुलिश। बट वही चीज का अगर उल्टा हो रहा है,
इनकम कम होती जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो गॉड नोस टेलीकॉम का क्या होगा। उसी हिसाब से फंडामेंटल जो स्टडी होती है ना, इसी चीज को फंडामेंटल स्टडी कहते हैं। और वही चीज को टेक्निकल फॉर्मेशन में आप लोग चार्ट्स देख के आप चार्ट्स को रीड करते हो, डे टू डे चार्ट क्या कहते हैं। जैसे रिलायंस का डे टू डे, रिलायंस 2100 क्यों पहुंचा, रिलायंस 2100 पहुंचा क्यों। कल का आप ट्रेड देखोगे, फ्राइडे इट हैज ऑलरेडी, थर्सडे फ्राइडे में इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 2100, इट इज ट्रेडिंग कंफर्टेबली अबाउट 2100। वो पहुंचा क्यों, 1850, 1900, 2000 के आसपास चल रहा था, 2100 के ऊपर गया क्यों। क्योंकि टेक्निकली आप देखो ना, जो आपको चार्ट पे मिलेगा, कैश फ्लो बहुत बढ़ गया, कैश फ्लो बढ़ गया था। प्राइजेस 1850, 1900 पे स्क्वीज होना शुरू हो गई थी, वहां से जाके 2000 पे गया, 2050, 2080 पे रिलायंस टू वाज नॉट एबल टू क्रॉस 2100, 2100 पे उनको रेजिस्टेंस फील हो रहा था। वही चीज को वापस नीचे गया और वहां पे एक स्क्वीज हुआ। स्क्वीज कैसे हुआ, आप स्प्रिंग की ले लो बात, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग क्या काम करती है, प्रेस ब्लास्ट। उसी हिसाब से वो 2000 के प्राइस के आसपास वो स्प्रिंग स्क्वीज हो गई। स्क्वीज होने के बाद छोटा सा मोमेंटम कैश फ्लो का है, इट गॉट स्क्वीज्ड, इट गॉट ब्लास्टेड एंड इट वेंट अबाउट 2100 एंड कंफर्टेबली 2150, 2160 के आसपास आराम से ट्रेड कर रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। दिस इज अ थिंग which is being studied on technical charts, for which technical knowledge is required and technical analysis is required. Fundatech अगर कमाना ही है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल और पैसा। और चौथी चीज, सब में स्टॉक मार्केट का बिजनेस करना है तो चौथी चीज which is most important is patience. ये चार चीज आपके पास है and you can make money like anything. Thank you so much, Mr. Hardik Kotecha, for enlightening our audience about the additional information on stock market on Stock Talk. Audience can join our Pathshala series to learn techniques about Fibonacci fundamental and technical research, especially how to make a profitable trade. This was your host Nitika for the Stock Talk show with Mr. Hardik Kotecha talking about stock market. For regular updates, like, share and subscribe to our YouTube and Telegram channels. Also follow us on Twitter and Instagram and to be a part of our family on Facebook. Stock Talk by Goldstone Finvest. Let's build fortune together.